EIGRP basically EIGRP is a hybrid protocol. मतलब क्या होता है? या हाइब्रिड प्रोटोकॉल के मतलब होता है कि ये थोड़ा बहुत डिस्टेंस वेक्टर और थोड़ा बहुत लिंक स्टेट दोनों का ফিচার্স लेके बनता है। দুটোরই ফিচার নিয়ে তৈরি হয়। কি ফিচার গুলো হয়? দেখো, নাথিং ইজ অ্যাবসোলিউট ইন দ্য ইউনিভার্স। কোনো কিছুই 100% রাইট, 100% মানে 100% মেরিট, সবই তার পজিটিভ, কোনো নেগেটিভ নেই, বা সবই তার নেগেটিভ, কোনো পজিটিভ নেই, এটা হতে পারে না। তো ইন সিমিলার ওয়ে ডিস্টেন্স ভেক্টর রাউটিং প্রোটোকলের কিছু মেরিটস আছে, কিছু ডিমেরিটস আছে। সিমিলারলি इन केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल तारो किछु मेरिट्स আছে, तारो किछु डिमेरिट्स আছে। मतलब क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट जिसको तुम चाहो, दोनों प्रोटोकॉल का दोनों टाइप जो राउटिंग प्रोटोकॉल टाइप होता है, ये दोनों का ही कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ नेगेटिव साइड है। তো এই যে হাইব্রিড জব বানায়া, যখন হাইব্রিড প্রোটোকলটা তৈরি করা হয় তখন কি করা হয়েছিল, ओनली द पॉजिटिव साइड গুলোকে নেওয়া হয়েছিল ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एंड द लिंक स्टेट। तो उस टाइम क्या किया, तुम्हारा डिस्टेंस वेक्टर का जो पॉजिटिव साइड है, वो जो फीचर्स है, और लिंक स्टेट का जो मेरिट्स है, मतलब पॉजिटिव फीचर्स मतलब मेरिट्स, ये दोनों मेरिट्स को जुड़कर एक नया प्रोटोकॉल बनाया गया। दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड प्रोटोकॉल एंड बेसिकली EIGRP इज अ हाइब्रिड प्रोटोकॉल। EIGRP का मतलब क्या होता है? EIGRP পুরো ফর্ম কি, এনহ্যান্সড ইন্টেরিয়র গেটওয়ে রাউটিং প্রোটোকল। এর কিছু ফিচার তুমি দেখবে ডিস্টেন্স ভেক্টরে আছে, আর কিছু ফিচার্স দেখবে এটা তোমার লিংক স্টেটে আছে। অবভিয়াসলি পজিটিভ ফিচার্স গুলো। ফার্স্ট যে ফিচার্স এর মধ্যে যে পয়েন্টটা আসছে, ফার্স্ট, it is a Cisco proprietary protocol. It is not like OSPF. OSPF was open protocol. Rather, OSPF is an open protocol. You can use it in any router. You don't have to take any permission from anybody. But if you want to use the EIGRP, then you have to talk to Cisco, because it is a Cisco proprietary protocol. First. Number two, it is not open. So you cannot utilize it non-Cisco router. So that is why the first point is, it is a Cisco proprietary protocol. Number two, its administrative distance is 90. Why this is important? কেন এটাকে আমি বলছি 90টা, কেন এটা ইম্পর্টেন্ট এডি ভ্যালু? আমি বলেছিলাম যে যার এডি ভ্যালু যত কম, তার অ্যাকসেপ্টেবিলিটি বা তার রিলায়েবিলিটি তত বেশি। মানে एट ए टाइम तुम्ही जे नेटवर्कটা আছে, उस दिन जो नेटवर्क हमने लैब में किया था, उस नेटवर्क में जाके तुम RIP, OSPF, EIGRP तीनों कॉन्फ़िगर करो प्रोटोकॉल। नाउ आफ्टर दैट जस्ट टाइप शो IP रूट एंड देखो, वहां पर चेक करोगे कि राउटिंग जो टेबल है उसमें कौन सा नेटवर्क दिखा रहा है, কোন নেটওয়ার্কটা ওখানে দেখাচ্ছে। তুমি তিনটে প্রোটোকলই ওখানে ডিজাইন করো, OSPF করো, EIGRP করো, RIP করো, তুমি দেখবে जार एडी वैल्यू कम, जिसका एडी वैल्यू मिनिमम, वही रूट वहां पर दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों रूट डिलीट हो गया, वो दोनों रूट होगा लेकिन हिडन होगा, क्योंकि उसका दो का जो एडी वैल्यू है वो ज्यादा है जो दिखा रहा है उसके हिसाब से। तो एडी वैल्यू जितना कम होगा, मतलब उसका एक्सेप्टेबिलिटी और ट्रास्टवर्दीनेस ज्यादा होगा। তার মানে যার এডি ভ্যালু যত কম, তার বিশ্বাসযোগ্যতা তত বেশি। তার মানে আমি যদি এখানে তিনটে প্রোটোকলকে কনফিগার করি, তার মধ্যে দেখবো যার এডি ভ্যালুটা কম, দেখবে সেই রুটটাই দেখাচ্ছে, তার মানে ওই প্রোটোকলটা থ্রু দিয়ে ও এখন কমিউনিকেশনটা করবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য এডি ভ্যালু ইজ ইম্পর্টেন্ট। থার্ড পয়েন্ট আমি একটু আগেই বললাম যে ইট ইজ আ হাইব্রিড রাউটিং প্রোটোকল। ইট ইজ a combination of the plus points of the distance vector and the plus points of the link state protocol as well. It supports CIDR and VLSN. It supports CIDR means
It supports the prefix masking. When you are typing 192.168.100.0 slash something, the full notation is called CIDR notation, classless interdomain routing notation. So it supports that. Next is VLSM, variable length subnet masking. আমি এটা বলেছিলাম যে সাবনেট মাস্কিং আমরা যে করি এটা দু ধরনের হয়। কি কি? একটা ডিফল্ট আর একটা কাস্টমাইজ। ডিফল্ট সাবনেট মাস্কিং কোনটা? যেমন ক্লাসের ক্ষেত্রে আমরা জানি 255.0.0.0, class B, in case of class B, 255.0.0, in class C, 255.0. That is the default. But if you subnet your network, then automatically this default subnet mask may change. So in that case, that type of subnet mask is called customized subnet mask. যখন আমার ডিফল্টে চলছে না, আমি ডিফল্টটাকে স্ট্যান্ডার্ড দেখে আমি তাকে ভাঙছি, ভেঙে নতুন তৈরি করছি, then that is called customized subnet mask. Now this customized subnet mask is again categorized as fixed length subnet masking and variable length subnet masking. Fixed length subnet masking mean तुम्हारे पास जितना भी सब नेटवर्क होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबनेट मास्क उसका जो कैलकुलेटेड सबनेट मास्क मतलब कस्टमाइज सबनेट मास्क वो सेम वैल्यू होगा। सबनेट 1 में भी जो होगा सबनेट 2 में भी वही होगा, सबनेट 3 में भी वही होगा। बट वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग और हाँ, वन चीज इज देयर, अनदर पॉइंट इज देयर, एफएलएसएम में जितना सब नेटवर्क तुम्हारे पास होगा उसमें इक्वल नंबर ऑफ यूजर रहेगा, चाहे तुम यूज करो चाहे तुम यूज ना करो, लेकिन हर एक सबनेट के पास इक्वल नंबर का यूजर होगा। अगर सबनेट 1 में 16 यूजर होगा तो सबनेट 2, सबनेट 3 वगैरह 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 जितना भी होगा सबके पास ये 16 यूजर ही रहेगा। तो इसका कुछ नेगेटिव पार्ट था। नेगेटिव पॉइंट क्या? जहां पर जरूरत नहीं वहां पर आईपी लॉस होता था, इस्तेमाल नहीं होता था, और जहां पर जरूरत है वहां पर आईपी नहीं मिल रहा था। तो इन दैट केस थोड़ा बहुत चेंज हुआ एफएलएसएम। बोला कि एक काम करो, ये फिक्स लेंथ को हटा दो, जितना यूजर ज्यादा उसमें सबनेट बिट कम कर दो, जहां पर यूजर कम है वहां पर सबनेट बिट इंक्रीज कर दो। तो क्या हुआ? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। मतलब ये यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है कि सबनेट 1 में तुम्हारा सबनेट मास्क जो होगा सबनेट 2 में वही होगा, उसके ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। So that is called the VLSM. So EIGRP supports VLSM, variable length subnet masking. Next point, it boosts the faster convergence time, improved scalability, and superior handling of routing loops. It boosts मतलब it energizes, এটা আমাদের বুস্ট আপ করা মিন্স এনার্জি দিচ্ছে। সেটা কি করতে? ফাস্টার কনভার্জেন্স টাইম। मतलब क्या होता है? सब राउटर के पास वेरी कम टाइम में सब राउटिंग टेबल अपडेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंस। मतलब एक राउटर के अंदर जितना भी तुम्हारा नेटवर्क इंफॉर्मेशन होगा सब रहेगा, और जितना भी राउटर होगा सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगा तुरंत। तो जितना कम टाइम में ये इंफॉर्मेशन सबके पास अपडेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस टाइम। तो यहाँ पर फास्टर कन्वर्जेंस होता है, नंबर 1। नेक्स्ट इज द इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। मतलब यहाँ पर ऐसा कोई ম্যান্ডেটরি বাত নেই है, এখানে কোনো রকম এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে ভাই তোমার ইআইজিআইপি নেটওয়ার্কে আমার এতগুলো রাউটারের বেশি আর ইআইজিআইপি নেটওয়ার্ক চলবে না, ইআইজিআইপি নেটওয়ার্ক চলবে না, এরকম কোনো ম্যান্ডেটরি বাत কথা নেই। कि यहाँ पर फिक्स नहीं है कि भाई IGRP नेटवर्क उसमें इससे ज्यादा राउटर नहीं इस्तेमाल होता है, दैट इज नॉट। इफ यू नीड यू कैन ऐड मोर एंड मोर राउटर्स टू दैट नेटवर्क। So that is why the second point is improved scalability and superior handling of routing loops. इसमें राउटिंग लूप का कंट्रोल करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। क्यों? এর ভেতরে রাউটিং লুপ জেনারেট, যে রাউটিং লুপটাকে ব্লক করা, রাউটিং লুপ যাতে জেনারেট না করে তার জন্য দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাউটিং প্রোটোকল। কেন?
because it is a combination of distance vector and link state routing as well. So OSPF এর কিছু ফিচার, link state routing এর কিছু loop free ফিচার এর মধ্যে ইনক্লুড করা আছে। So that is why it is very easy to this is very easy to handle the routing loops in case of this EIGRP. আচ্ছা, আমি এইটুকু যে বুঝিয়েছি, is it clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है तो? No, sir. Okay. Next is, it is easier to configure than OSPF. Obviously, यहाँ पर तुम जस्ट लास्ट क्लास में जो हुआ था वो याद करो कि वहां पर जो अभी डिस्कशन हुआ मेरे साथ मनीष का, कि भाई प्रोसेस आईडी देना पड़ेगा, एज वैल्यू देना चाहिए, लेकिन ये ओएसपीएफ में आईजीआरपी में कोई प्रोसेस आईडी का बात नहीं है। तुमको हाँ ये बोल देना चाहिए कि भाई ये एज वैल्यू कितना है। सेकेंड, यहाँ पर कोई एरिया का बात नहीं है, यहाँ पर कोई वाइल्ड कार्ड मास्किंग का भी बात नहीं है, सिर्फ जो तुमने रीप में किया था वही यहाँ पर करो। जस्ट वन पॉइंट यू हैव टू ऐड, एज वैल्यू। राउटर EIGRP करके चले आओ, वहां पर लिख लो EIGRP एज वैल्यू, डाल दो। देने के बाद नेटवर्क, जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड वो डाल दो, बस दैट्स ऑल, जो रीप में हम किया था। यहाँ पर एक पॉइंट ही ज्यादा है रीप के हिसाब से, वो है एज वैल्यू, और कुछ नहीं है। So that is why it is very easy to configure with, if you consider OSPF, so it is easier. Next is, it is ideal for large multi-protocol networks. Those are built primarily on Cisco routers. This is ideal for large and multi-protocol networks. What is the meaning of this multi-protocol? लार्ज मतलब तो ठीक है भाई, बढ़िया जो बड़ा नेटवर्क होगा, जितना भी चाहे बड़ा हो तो EIGRP चलेगा, যত বড় নেটওয়ার্ক हो हमारी EIGRP चलবে। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मल्टी प्रोटोकॉल नेटवर्क? इसका मायने क्या है? मल्टी प्रोटोकॉल मतलब कि जो राउटर में मल्टीपल नेटवर्क सपोर्ट है सिस्को राउटर में, वहां पर यह सब चलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि IPX, आईपी नॉर्मल जो हम लोगों का नेटवर्क है चलता है, लेकिन व्हाट इज IPX? IPX is a special type of network which is similar to IP, but it is a totally novel network IP। मतलब नोवेल नेटवर्क चलता है, उसमें हम लोगों का जो आईपी है उसका जो काम है वहां पर IPX का वही काम है। वो IPX को कहते हैं इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज। वन मोमेंट, আমার ক্লাস চলছে, আমি 5:10 পর ফোন করছি। ओके, so that is the meaning of मल्टी प्रोटोकॉल। मतलब ये एप्पल टॉक का जो नेटवर्क होगा, नोवेल का जो प्रोटोकॉल होगा, नॉर्मल हम लोगों का जो IBM जैसे कि IP प्रोटोकॉल होगा, सब में ये चलेगा। मतलब EIGRP सपोर्ट करता है नॉट ओनली IP, IPX भी करता है, एप्पल टॉक का भी कुछ प्रोटोकॉल्स होता है उसमें भी सपोर्ट देता है। So that is why the point is multi protocol networks. আচ্ছা, এটা কি বুঝতে পেরেছো? আমি বোঝাতে পেরেছি এই পয়েন্টটা? am I clear? सर ये फिर से बता दीजिए सर, एप्पल टॉक क्या बोल रहा है? एप्पल टॉक एक नेटवर्क है, ये जो उसके बाद जो देखो एक पॉइंट है एप्पल टॉक भी एक नेटवर्क है। जैसे कि हम लोगों का TCP/IP होता है, तो ऐसे ही एप्पल टॉक होता है, नोवेल का नेटवर्क होता है, सबका नेटवर्क होता है। तो EIGRP में क्या होता है, नॉट ओनली IP बट IPX को भी सपोर्ट करता है। एप्पल टॉक का भी लेयर 3 कोई भी प्रोटोकॉल होगा तो उसमें ये सपोर्ट देगा। मतलब EIGRP अगर तुम एप्पल टॉक में कॉन्फ़िगर करना चाहो, दैट इज पॉसिबल। अगर तुम चाहो एक नोवेल नेटवर्क है जहां पर सब कुछ नोवेल में चल रहा है, वहां पर चलाने के लिए ये EIGRP को इस्तेमाल करना, तो दैट यू कैन। दैट इज द पॉइंट ऑफ मल्टी प्रोटोकॉल।
मतलब टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल शूट के बाद भी जो अदर्स जो होगा वहां पे भी आईजीआरपी सपोर्ट देगा। ये ऐसा नहीं है कि टीसीपी/आईपी में ही चलेगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज व्हाई इट इज द पॉइंट इज মাল্টি প্রোটোকল। ইজ ইট ক্লিয়ার? ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? यस सर। ওকে, বাকিটা কি বুঝেছো? सर यस सर। স্যার ওকে, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে নোভেল যে প্রোটোকল বা এই অ্যাপেল টকের যে নেটওয়ার্কটা আছে এই ইআইজিআইপি প্রোটোকলে যদি আমি নেটওয়ার্কটাকে কনফিগার করি তাহলে কি আমার টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্কের সাথে অ্যাপেল টকের নেটওয়ার্কের সাথে আমার ক্রস টক হতে পারে? মানে এই দুটো আলাদা নেটওয়ার্কের সাথে কমিউনিকেশন হতে পারে? হতেই পারে, হতেই পারে। সেখানে আলাদা কিছু নেসেসারি স্টেপস তোমাকে নিতে হবে, সেটা আলাদা ব্যাপার। কারণ তুমি তো দুটো নেটওয়ার্ককে তুমি জয়েন করতে চাইছো, সেটা হতেই পারে, সেটা তোমাকে ওখানে করতে গেলে হবে। কিন্তু তার মানে এখানে যেটা আমি বলতে চাইছি যে তার মানে তুমি আইজিআরপি শুধু তুমি বলে দিচ্ছ, মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম আমি ভাত ছাড়া কিছু খাই না, তা না। আমি ভাতও খাই, রুটিও খাই। এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে চাই আইজিআরপি মানে যে শুধু টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্ক সাপোর্ট দেবে তা না। টিসিপি/আইপি নেটওয়ার্কও সাপোর্ট দেবে, অ্যাপল টককেও সাপোর্ট দেবে, নোভেলকেও দেবে। বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার। সেটাই এখানে বলেছে। নেক্সট পয়েন্ট কি বলছে? ইট রিপ্লেসেস Novell's routing information protocol and AppleTalk's routing table maintenance protocol, serving both IPX and AppleTalk networks with powerful efficiency। जो मैंने पहले पॉइंट में बताया ये। नोवेल में अगर तुम EIGRP को इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। नोवेल का भी एक खुद का एक प्रोटोकॉल था जिसको कहते हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जो ये रीप नहीं, ये अलग रीप है। ये नोवेल का रीप होता है जिसका काम EIGRP के हिसाब से एकदम सेम, लेकिन EIGRP is more and more powerful than Novell's REAP। and side by side AppleTalks का जो राउटिंग टेबल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल है RTMP, ये दोनों का काम ही एक ही था, लेकिन इससे ज्यादा बेहतर है ये EIGRP। EIGRP কি হচ্ছে এই দুটো প্রোটোকলের থেকে অনেক বেশি পাওয়ারফুল এবং অনেক বেশি মানে রিলায়েবল এফিশিয়েন্ট নেটওয়ার্ক, সেটাই এখানে বলেছে। নেক্সট এবার কিছু কিছু জিনিস বলছে যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে কিছু ফিচার ওর মধ্যে डिस्टेंस वेक्टरेर আছে, सम फीचर्स लिंक स्टेटेर আছে। मतलब ये जो EIGRP है उसके अंदर कुछ फीचर्स तुमको लगेगा अरे ये तो डिस्टेंस वेक्टर में था, और कुछ फीचर्स लगेगा कि ये तो लिंक स्टेट में था, क्योंकि दोनों दोनों मिलकर ये बनाया गया है। सो दैट इज द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, लाइक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, EIGRP exchanges entire routing table only at the first time routing convergence। ডিস্টেন্স ভেক্টরে আমাদের কি হতো? প্রথমেই কি হতো, প্রত্যেকটা রাউটার প্রথমেই এক্সচেঞ্জ করতো তাদের এন্টায়ার যে রাউটিং टेबल ए ओके दी तो ओ ओके दी। जो कंप्लीट राउटिंग टेबल था हर एक राउटर के अंदर, तो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था कि भाई मैं एक राउटर हूं, तुम भी एक राउटर हो, तो मेरा पास ये पूरा जानकारी है, ये राउटिंग टेबल तुम ले लो, तुम्हारे पास जो राउटिंग टेबल है तुम पूरा वो राउटिंग टेबल मुझको दे दो। तो एक्सचेंजिंग ऑफ द एंटायर राउटिंग टेबल होता था। कब होता था? एकदम फर्स्ट में, जब राउटर को तुम चलाया फर्स्ट टाइम वो रन कर रहा है, तो तब जाके ये राउटिंग टेबल एक्सचेंज ऑफ राउटिंग टेबल होता था, उसके बाद नहीं। ड्यू टू मतलब किसके लिए? कन्वर्जेंस के लिए। सेकंड, फॉर अपडेट्स एंड एनी अदर मैसेजेस EIGRP is totally dependent on neighbor like any distance vector। distance vector में কি হতো তুমি চিন্তা করো না, তোমার কাছে যে লিংকড রাউটার আছে সে তোমায় যে ইনফরমেশনটা দিত তোমাকে সেটা নিয়েই থাকতে হতো, তুমি তো অন্যদেরটা পেতে না। সে তোমায় বলে দিল ভাই এইটা এই नेटवर्क, তুমি सेटाई तुम তোমার टेबल अपडेट करो। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था कि भाई 2 2 3 4 5 6 जितना भी राउटर है सबके पास एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहेगा। तो भाई मेरा नेबर में मेरे को जो डाल दिया कि भाई ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन है ले लो, तो मेरे को डिपेंड करना पड़ता था किसके ऊपर? नेबर के ऊपर, कि नेबर जो तुम्हारे पास है भाई तुम दे दो, मैं तुम्हारे इंफॉर्मेशन को लेकर ही हम मेरा टेबल বানাতে हैं। মানে তোমার নেবার যে ছিল ওএসপিএফ আমরা কি করছিলাম মনে করে দেখো, প্রত্যেকটা টেবল কিন্তু হ্যালো মেসেজ পাঠিয়ে প্রত্যেকটা টেবল নিজেরা কিন্তু 100% জেনারেট করে সেই টেবল কিন্তু তারা লিংক স্টেট ডেটাবেস তৈরি করছিল, প্রত্যেককে এক্সচেঞ্জ করছিল, যেটাকে আমরা বলেছিলাম গ্লোবাল নলেজ। এটা লিংক স্টেট ডেটাবেস তৈরি হচ্ছিল যার মধ্যে প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যেকের টোটাল কন্টেন্টসটা আছে এবং প্রত্যেকের কাছ থেকেই পেতো। আমি আমার সঙ্গে যদি 10টা রাউটার ওএসপিএফ এ কানেক্ট থাকে তাহলে আমি 10 জনের টেবিলই আমার কাছে থাকবে।
रिमेंबर अगर वेस्ट पीएफ अगर नेट अगर वेस्ट पीएफ का नेटवर्क चल रहा है तो वहां पर 10 राउटर है, तो समझ लो कि भाई मैं एक राउटर हूं, तो मेरे को छोड़ के और भी 9 राउटर्स है। तो ओएसपीएफ में क्या होता था, सब राउटर सबके पास हेलो मैसेज भेजते थे और मेरे पास बाकी 9 का टेबल मेरे पास था, हर एक के पास बाकी उसको छोड़कर बाकी 9 का टेबल राउटिंग टेबल उसके पास रहता था, मतलब लिंक स्टेट डेटाबेस रहता था, नॉट राउटिंग टेबल। मतलब सबके पास सबका इंफॉर्मेशन रहता था, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में वो ऐसा रीप में नहीं होता था। रीप में होता था कि भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ कौन सा राउटर है, तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो तुमको डाल दो, वो मुझको भेज दो, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है मैं तुमको भेजूंगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। फॉर अपडेट्स एंड एनी अदर मैसेजेस CIGRP इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द नेबर। जस्ट यहाँ पर जो फीचर, ये जो फीचर है पर्टिकुलरली, दैट इज वेरी मच सिमिलर टू द रीप, मतलब ডিসটেন্স ভেক্টর। এই দুটো যেটা দেখলেন, প্রথম পয়েন্ট আর পরের পয়েন্টটা, এই দুটো ডিসটেন্স ভেক্টর থেকেও নিয়েছে। সিমিলারলি ইন ফ্রম লিঙ্ক স্টেট কি নিয়েছে, লাইক লিঙ্ক স্টেট প্রোটোকল, EIGRP ডাজ নট সেন্ড দ্য পিরিয়ডিক আপডেটস। আপডেটস আর অনলি সেন্ট when there is change in the topology। আমাদের যেমন মনে করে দেখো, আমরা পিরিয়ডিক্যালি চেঞ্জ করতাম, আমাদের চেঞ্জ হতো রিপেতে, একটা টাইমার ছিল, হ্যালো তোমার এ টাইমার, ইন্টারভ্যাল টাইমার ছিল, আপডেট 30 সেকেন্ড অন্তর অন্তর এক্সচেঞ্জ অফ রাউটিং টেবল হতো ইন কেস অফ রিপ, বাট ইন কেস অফ EIGRP দ্যাট উইল নট বি লাইক দ্যাট। কেন? বিকজ লিঙ্ক স্টেট প্রোটোকল ছিল যখন চেঞ্জ হবে তখনই আমি তোমায় আপডেটটা দেবো, আননেসেসারি আমি আপডেট তোমায় দেবো না, कंजेशनটা क्रिएट করব না। अननेसेसरी मेरे पास जो कुछ भी आए, अरे भाई तुम्हारे पास तो पहले भेज दिया तो फिर से क्यों भेजेंगे, अननेसेसरी। हाँ, कोई चेंज होगा किसी नेटवर्क में, कोई भी टोपोलॉजिकल चेंज होगा तो वो हमको तो बताना ही पड़ेगा, तो तब जाके वो चेंज हम तुमको भेजेंगे। बट डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था, एवरी 30 सेकेंड्स इंटरवल में मेरे पास कुछ नया है तो भी, नया कुछ नहीं होगा तो भी मैंने राउटिंग टेबल हम भेजेंगे विदाउट एनी रीजन। तो कंजेशन वहां पर ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये फीचर, यह GRP का ये फीचर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल से वो ले लिया कि भाई एक काम करो, हाँ मेरे पास जो जो डिस्टेंस वेक्टर के हिसाब से मेरे पास जो जुड़ा हुआ राउटर है, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि तुम जो भेजोगे मेरे पास उतना ही इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन हम तब अपडेट भेजेंगे या तब अपडेट रिसीव करेंगे जब कोई भी चेंजेस होगा। चेंजेस अगर नहीं होगा तो अननेसेसरी ट्रैफिक का बार्डन हम लिंक में नहीं डालेंगे, আমরা অকারণ এই বার্ডেনটা আমরা নেব না। চেঞ্জ হলে আমি ভাই তোমায় জানাবো, চেঞ্জ হচ্ছে না আমি তোমায় জানাবো, দ্যাটস ইট। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থার্ড পয়েন্ট। নেক্সট, links like link state protocols, EIGRP establishes and maintain the neighbor adjacency by exchanging the hello packets। এখানে কিন্তু ওই হ্যালো প্যাকেট নেবারের সঙ্গে করছে, যে কানেক্টেড আছে তার সঙ্গে করছে হ্যালো প্যাকেট। ডিসটেন্স ভেক্টরও কিন্তু কানেক্টেড এর সঙ্গে ছিল, কিন্তু হ্যালো এক্সচেঞ্জ করছিল না। বাট এখানে কিন্তু ওর যে নেবার আছে সেই নেবারের কাছেও হ্যালো মেসেজটা ফরওয়ার্ড করবে, বা তার কাছ থেকে ও হ্যালো মেসেজটা ইট উইল রিসিভ দ্য সেম। সো এইটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট। তার মানে কিছু ডিসটেন্স ভেক্টরের পেলো, কিছু পাচ্ছে তোমার লিঙ্ক স্টেট। এইবার হচ্ছে যেটা, যে बेसिकली EIGRP 3 जो डेटाबेस है या टेबल जो भी कहो, ये 3 उसका मेमोरी में रहता है जब नेटवर्क चल रहा है उस टाइम। कौन सा राउटिंग टेबल, ऑब्वियसली राउटिंग टेबल तो रूट सिलेक्शन के लिए चाहिए। नेबर टेबल, कौन कौन मेरा पास कौन कौन नेबर अटैच्ड है। टोपोलॉजी टेबल, एंटायर हर एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन, अगर इसमें टोपोलॉजिकल कोई इंफॉर्मेशन चेंज होगा तो मेरे पास आएगा, सब जितना भी राउटर होगा सबके पास जाएगा। যদি কোনো টপোলজি চেঞ্জ হয় সেই চেঞ্জ সবার কাছে যাবে। যদি নেবারের কোনো চেঞ্জ হয় সেই ইনফরমেশন সকলের কাছে যাবে। কোনো যদি রুটের চেঞ্জ হয়, এনি চেঞ্জেস
in root, that information obviously that will be updated in the routing table. Next is, acha এইটুকু কি clear? Is it clear up to this point? Yes, sir. Okay. Next is EIGRP uses diffusion update algorithm dual for root calculation. रूट कैलकुलेशन मतलब हमको तो कॉस्ट का कैलकुलेट करना पड़ेगा, कि मेरे पास मेरे साथ जुड़ा हुआ जितना भी है, तो ये रूट कैलकुलेशन कैसे होगा, रूट सिलेक्शन कैसे होगा, दैट फुल्ली डिपेंड्स ऑन दिस एल्गोरिथम. ये एल्गोरिथम के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, उसका मेट्रिक कैलकुलेशन होगा, मेट्रिक कैलकुलेशन के बाद उसको पता चलेगा कि भाई मेरा 2 रूट है या 3 रूट है या 4 रूट है, जितना भी चाहे रूट है उतना उसका मेट्रिक वैल्यू यह है, जिसका मेट्रिक वैल्यू कम है उस मेट्रिक वैल्यू के हम इस्तेमाल करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए. सो ये कैसे पता चलेगा इसका मेट्रिक वैल्यू कम है, कौन सा एल्गोरिथम के हिसाब से होगा, वो होगा डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम और डुअल के हिसाब से. ये एक एल्गोरिथम है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्वियसली जब रूट कैलकुलेशन के बारे में बात आया तो वहां पर मेट्रिक का बात भी आएगा. मेट्रिक क्या है, तो EIGRP का मेट्रिक क्या होता है, पहला होता है बैंडविड्थ, कितना बैंडविड्थ तुम्हारा है KBPS में, लोड कितना है, फिर भाई तुम्हारा कितना डेटा तुम भेज रहे हो उस लिंक से. नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, कि मैं सही तरह से डेटा भेज दिया, जो रिसीव कर रहा है वो सही तरह से डेटा रिसीव कर रहा है, उसका रिलायबिलिटी कितना है. और MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मतलब मेरा इंटर लोड इज दिस, लेकिन हम जब डेटा भेजेंगे तो इतना किलोबाइट या इतना मेगाबाइट की इतना बीट के हिसाब से, that is called the MTU, maximum transmission unit. By default, EIGRP uses bandwidth and delay as metric value. मतलब बैंडविड्थ है और यहाँ पर है तुम्हारा डिले, लोड या रिलायबिलिटी कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट. अगर नेटवर्क चाहे कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें तब तो जाके ये MTU का वैल्यू सबको बताएगा. Next is, it supports classless routing. What is classless routing? जो मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि क्लासलेस IP क्या है, क्लासफुल IP क्या है. तो क्लासलेस राउटिंग के मतलब होता है जो राउटिंग जो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है उसमें ডিফল্ট সাবনেট ইস্তেমাল नहीं कर रहा हूं, যেখানেতে আমি ডিফল্ট সাবনেট আমি ইউজ করছি না, তাকে আমি অর্থাৎ যেখানে আমি ক্লাস কোনো ডিফাইন করতে পারছি না, সেই ধরনের নেটওয়ার্ককে আমি বলবো ক্লাসলেস নেটওয়ার্ক. জাস্ট ফর এক্সাম্পল 172.16.0.2/18 या 20, 172 को तुम देख कर तुमको पता चलता है कि यार सर ये तो क्लास बी है, लेकिन सबनेट पास क्या है, 16 है नहीं, 18 है या 20 है, मतलब ये कुछ और है, এখানে কিছু অন্যরকম দিচ্ছে যেটা ক্লাস বি নয়. then you must say that sir it belongs to class C, but again you are wrong. क्लास सी कैसे होगा, क्लास सी तो 24 से शुरू हुआ है, तुम्हारा जो सबनेट मास्क है वो ना 16 है ना 24 है, उसको बीच में है, तो उसको क्या क्लास हम डिफाइन करें. देखने में तो क्लास बी लग रहा है, लेकिन सबनेट मास्क तो बोल रहा है ये क्लास बी और सी के बीच में है, मतलब उसका कोई क्लास डिफाइन हम नहीं कर रहा है, हमें क्लास डिफाइन करते पाরছি না. So it is a classless network. EIGRP supports classless network routing and route summarization. That is very important. What is the route summarization? बोल सकते हो क्या? What is route summarization? Summarize के मतलब क्या होता है? क्लब कर देना, सबको एक साथ जोड़ देना. আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি. I am just giving you the example.
ধরো ইউনিভার্সিটি থেকে একটা পিকনিক হচ্ছে, সবাই যাবে। তো পিকনিকে যখন যাওয়া হচ্ছে, আমি কি বললাম, আমাকে তোমরা প্রশ্ন করলে স্যার পিকনিকে যে আমরা পার্টিসিপেট করব, আমাদের কত টাকা পড়বে, আপনি যদি আমাদের একটু জানান। আমরা কি করছি, আমরা করলাম, তাহলে তোমাদের যদি 12 জন স্টুডেন্ট হয়, আমাকে বসে বসে 12 জনকে মেসেজ করতে হবে। আমি তা করলাম না, তোমাদের 12 জনের ফোন নাম্বার নিয়ে একটা অফিসিয়াল গ্রুপ তৈরি করে দিলাম, আমি ওখানে মেসেজটা ছেড়ে দিলাম, অটোমেটিক্যালি সকলের কাছে চলে গেল। समझ लो कि यूनिवर्सिटी में एक पिकनिक का अरेंजमेंट हो रहा है। तो अजीत हमको बोला कि सर ये पिकनिक में तो हम हिस्सा लेंगे, लेकिन पर हेड कितना देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम बात करके तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे भाई पर हेड कितना रुपया लगेगा। तो तुम्हारे को 12, तुम लोगों का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, तो एक ऑप्शन हुआ कि ये जो 12 स्टूडेंट है, हर एक के मोबाइल में जाके हमको कॉल करके बात बोलना है कि अजीत ऐसा ये चार्ज हुआ, कि ये विभू 100 रुपीज चार्ज हुआ, कि वो क्या मान लो 100 रुपीज चार्ज हुआ। तो दैट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। हमने बोल दिया भाई एक काम करो, सबका जो फोन नंबर है, सबका व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर एक ग्रुप क्रिएट कर दो, उसके अंदर डाल दो कि BHN BNCSC 2019 बैच। हम जाके वहां पर एक टाइप कर दिया कि पर हेड 100 रुपीज या 200 रुपीज ये लागे चाहिए, बस सेंड कर दिया, वो सबके पास चला गया। तो दैट इज वेरी इजी। सो सेम थिंग हैपनिंग हियर, रूट समराइजेशन। समझ लो एक नेटवर्क है 100 192.168 10.0, तो उसके अंदर बहुत सारे होस्ट होगा। तो अगर राउटर का राउटिंग टेबल में इतना सारा होस्ट का इंफॉर्मेशन देना पड़े, तो राउटिंग टेबल बहुत हेवी हो जाएगा। और वो जब वो राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगा, तो वहां पे भी बहुत कंजेशन जनरेट होगा। तो हमने बोल दिया भाई एक काम करो, वो जितना भी होस्ट है उसका मत बोलो, उसका मदर नेटवर्क कौन सा है, बोला कि भाई मदर नेटवर्क है 192.168.10 है, और उसको एक बार बोल दो, उसके ऑटोमेटिकली जितना भी उसका पार्ट है उस सब के लेके चला आएगा, नेटवर्क में अलाउ हो जाएगा, कंप्लीट। तो जहां पर राउटिंग टेबल में 10 एंट्री होना चाहिए या 20 एंट्री होना चाहिए या 30 एंट्री होना चाहिए, जितना भी चाहे होगा, उसकी जगह एक एंट्री कर दिया, मतलब सबको समराइज करके उसका जो मदर एंट्री है, मदर नेटवर्क है, उसको डाल दिया, तो उसके ही पता चलता है ये मदर नेटवर्क अलाउ है, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ जितना भी नेटवर्क है सब अलाउ है, सब जाएगा। तो इसमें राउटिंग टेबल का नंबर ऑफ एंट्रीज कम हो गया, राउटिंग टेबल भी स्लाइटली उसका साइज भी कम हो गया। सो दैट इज कॉल्ड द रूट सामाराइजेशन। যে আমি বলে দিচ্ছি যে আমাকে এতগুলো লোককে বলতে হবে, যেমন একটা নেমন্তন্ন করতে গেছে কারুর বাড়িতে, তার বাড়ির যদি 10 জন বা 5 জন 6 জন মেম্বার হয়, তাহলে তোমাকে প্রত্যেককে বলতে হচ্ছে। তুমি তা করলে না, তুমি বাড়ির হেড অফ দি ফ্যামিলি যে, তুমি তাকে ইনভাইট করে এলে, অটোমেটিক্যালি সেই ইনভাইটটা কিন্তু বাকিদের উপরও চালু হয়ে গেল, কারণ তুমি হেড অফ দি ফ্যামিলিকে বলেছো। তার মানে তুমি একে সামারাইজ করে নিলে, সামারাইজ করে একজনকে বার করলে, করে বললে একে বললেই হয়ে যাবে। সেম থিং ইজ হ্যাপনিং হিয়ার। Multiple networks are generated from their original mother network. তাহলে তুমি ইন্ডিভিজুয়াল যদি স্পেসিফাই করতে আরম্ভ করো, তাহলে সেটা খুব টিডিয়াস জব। তখন বলা হলো দরকার নেই, ওরা যার থেকে জেনারেট হচ্ছে তাকে একবার কল করবো, সে কল করলেই বাকিরা চলে আসবে। এটাকেই বলা হচ্ছে রুট সামারাইজেশন। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे एक क्लासलेस वाला आपने बताया था ना सर, ऊपर में एक CIDR करके एक पॉइंट है, बोथ आर सेम। हाँ, क्लासलेस अलग है, सीआईडीआर वैल्यू क्या है, वो तो डिफॉल्ट में भी चलेगा, सब में चलेगा। तुम अगर दे दो कि 192.168 10.5/24 आई मीन 24, वो क्लास फुल है,
तुम डाल दिया 172.16.0.2/20 क्लास लिस्ट हो गया। नोटेशन जैसे लिख रहे हो उसको कहते हैं सीआईडीआर, ओके सर। लेकिन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से ये क्लासलेस सीआईडीआर है या क्लास फुल सीआईडीआर नोटेशन, दैट डिपेंड्स। समझ में आया? यस सर। सर ये टोपोलॉजी टेबल एक बार बता दीजिए। हम आएंगे हम यहाँ पर जिस्ट बोला, उसके बाद हम आएंगे, पहले ये ओके सर। कंप्लीट फीचर्स कंप्लीट होने के बाद हम आएंगे ना। नेक्स्ट इज EIGRP uses the reliable transport protocol for reliable delivery of 5 types of messages. Actually EIGRP में 5 टाइप किस्म का मैसेज एक्सचेंज होता है। EIGRP তে 5টা টাইপের মেসেজ আদান প্রদান হয়। নাম্বার 1 ইজ hello message, update message, query message, reply message, acknowledgement. But remember, out of these 5 बीच का जो 3 मतलब BCD, ये जो 3 है, ये 3 मैसेज इस्तेमाल करता है ये आरटीपी को फॉर सेफ कम्युनिकेशन, और आरटीपी का ये रिलायबल डिलीवरी जो करता है, इसीलिए आरटीपी इस्तेमाल करता है टीसीपी को। मतलब हेलो मैसेज में आरटीपी का कोई जरूरत नहीं है और एक्नॉलेजमेंट में भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपडेट या क्वेरी या रिप्लाई, ये तीनों मैसेज में तुम्हारा रिलायबल इंफॉर्मेशन डिलीवरी होना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आरटीपी इज यूज्ड एंड इन टर्न आरटीपी यूटिलाइजेस द टीसीपी पोर्ट। মানে আপডেট কোয়েরি রিপ্লাই মেসেজ যখন যাবে তখন সেটা আরটিপি কমিউনিকেট করে দেবে, কিন্তু ইউজ করবে টিসিপি পোর্টকে, টিসিপি পোর্টের থ্রু দিয়ে করবে। দ্যাট ইজ ওয়াই অল দিজ আর রিলায়েবল ডেলিভারি। আপডেট মানে হচ্ছে কোনো একটা নেটওয়ার্কে আপডেট হয়েছে, थ्रू दिस अपडेट मैसेज दैट विल बी अपडेटेड टू तुम्हारे पास जितना भी राउटर्स होगा सबके पास ये EIGRP राउटर के पास चला जाएगा इंफॉर्मेशन। दैट इज द फ्लेवर ऑफ द अपडेट मैसेज। क्वेरी मैसेज मानेटा की, सपोज मेरे साथ जुड़ा हुआ है अजीत, लेकिन मेरे पास अजीत के जाने के लिए मल्टीपल रूट्स है, तो मेरा जो सही रूट है, मतलब जो मेरा डिफॉल्ट रूट है, वो समझ लो कि बीच में साजिद आया, तो साजिद के थ्रू से अजीत के पास हम जा रहा है। लेकिन किसी भी प्रॉब्लम में मेरा वो रूट डिसेबल हो गया और मेरे वो लिंक फेल हो गया, तो मेरे अल्टरनेट लिंक चाहिए। तो अल्टरनेट लिंक हमको कैसे मिलेगा कि दूसरा कोई रूट होगा, तो मेरा जो नेबर है उसके पास एक मैसेज भेजेंगे कि भाई अल्टरनेट तुम्हारे पास जाने के लिए और कुछ है, दैट इज द क्वेरी। अगर उसके पास से मेरे पास कोई रिप्लाई आएगा, मैसेज आएगा कि हाँ भाई ये रूट है अल्टरनेट, वो कौन सा मैसेज के थ्रू से आएंगे मेरे पास? रिप्लाई के थ्रू से। जब मेरे पास चला आया कि भाई ये तुम्हारा ए रूट था, अब ए रूट मिल नहीं रहा है, हाँ अल्टरनेट एक बी रूट है, तो ये रो बी रूट का जो डिटेल्स ये हम भेज रहा है। तो आफ्टर रिसीविंग दैट रिप्लाई मैं मेरे को उसको जाके एक एक्नॉलेजमेंट भेजना चाहिए। कौन सा मैसेज के थ्रू से? ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज के थ्रू से। दिस इज द functions of 5 messages. Is it clear or not? Is it clear or not? बताओ। यस सर। বাকিরা কি বুঝেছো? ওকে, নেক্সট হচ্ছে কি বলছে, EIGRP সাপোর্টস আনইকুয়াল কস্ট লোড ব্যালেন্সিং, যেটা আমি বলেছিলাম যে আমার কাছ থেকে একজনের কাছে যাচ্ছি, ডেটাটা যাচ্ছে আমার কাছ থেকে, সৌমাল্য দূরে রয়েছে, আমার কাছ থেকে সৌমাল্যর কাছে ডেটাটা যাবে, মাঝখানে আমার 3টে রুট আছে, 3টে রুটেই আমার কস্ট এক হয়ে গেছে। তখন আমি কি করব? আমি আমার টোটাল প্যাকেটটাকে 3টে ভাগে ভাগ করব। প্রথমবার এখান দিয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার মাঝেরটা দিয়ে গেল, 3এরটা পরেরটা লাइन দিয়ে गया। समझ लो कि मेरा और सौमाल्य के बीच 3 कनेक्शन है।
अल्टरनेट कनेक्शंस। तो तीनों जो कनेक्शंस है, अगर तीनों कनेक्शन का मेट्रिक वैल्यू कॉस्ट सेम होगा तो क्या होगा, जब मैं या शो मान लो हम लोग एक्सचेंज करेंगे डेटा, तो ये तीनों रूट इस्तेमाल होगा। और कैसे इस्तेमाल होगा, इक्वल बैंडविड्थ में होगा। मतलब मेरे पास बैंडविड्थ नहीं, मतलब इक्वल स्पीड में होगा। कैसे, अगर मेरे पास 128 किलोबाइट का डेटा है, तो पहले एक रूट से 42 किलोबाइट चला गया, दूसरा 42 यहाँ से चला गया, तीसरा 42 यहाँ से चला गया। मतलब इक्वली मेरा लोड शेयर हो जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई सिचुएशन है आएगा कि जहां पर इक्वल लोड बैलेंसिंग, इक्वल कॉस्ट नहीं है, अनइक्वल कॉस्ट है, तब जाके रीप काम नहीं करेगा, क्योंकि रीप ऑलवेज इक्वल लोड बैलेंसिंग में काम करता है। EIGRP अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग में काम करता है। EIGRP সাপোর্টস দিস। অর্থাৎ আমার কাছে যদি কোনো EIGRP নেটওয়ার্ক থাকে এবং কোনো আনইকুয়াল কস্ট পাথ থেকে যায়, তাহলে আমার লোড ব্যালেন্সিং আমি করতে পারবো, নো প্রবলেম। লাস্ট পয়েন্টটা কি বলছে, বলছি ইট সাপোর্টস ফর বোথ IPv4 এন্ড IPv6। EIGRP IPv4 এও যেমন কাজ করে, IPv6 এও তেমনি সেম ভাবে কাজ করে, সেটাই এখানে বলে। Is it clear or not? Is it clear or not? सर ये जो मैसेज है सर, ये जो जाता है मतलब किस फॉर्म में जाता है, पैकेट के फॉर्म में जाता है या Obvious, कैसे जाता obvious। इसका एक साइज है, पैकेट के फॉर्म में चला जाता है उनको? है। ওকে, সো আপ টু দিস পয়েন্ট যদি কারোর কোনো প্রবলেম থাকে তো আমাকে বলো। এক সেকেন্ড আমি একটু আসছি, দাঁড়াও। বলো, কারোর কিছু প্রবলেম আছে বলো, তারপর আমি পরের স্টেপটায় যাব। কারা কারা আছো আমি একটু দেখে নি। অজিত, বিভু, 6-12, মনীষ আছে, নরসি আছে, সায়ন, শুভদীপ, সুদীপ্ত। ঠিক আছে। বিভু কোন কোন রোল নাম্বার নেই আমাকে একটু বলে দেবে শুধু। ঠিক আছে। ওকে স্যার, বলবো। হ্যাঁ স্যার, ক্লাস শেষে তো হ্যাঁ, স্যার? ক্লাস শেষে বলে দেবে। নেক্সট হচ্ছে EIGRP টেবলস। এইটার আমি একটা ভালো নোট তৈরি করছি, সেটা আমি তোমাদের দিয়ে দেবো। এটা ঠিক আছে, এটা চলবে। सर হ্যাঁ বলো। सर जब अपडेट मैसेज मतलब सेंड करता है वो अपना अपडेट भेजता है राउटर? सर राउटर मतलब अपना अपडेट भेजता है? एग्जैक्टली, उसके पास जो इंफॉर्मेशन है उसका अपडेट ही भेजेंगे। अपडेट तो कोई किसी भी तरह हो सकता है, कोई भी रूट का चेंज होता है, नेटवर्क का चेंज होता है, जो भी चेंज होगा, जो चेंज होगा वो अपडेट के हिसाब से ही सबके पास चलेगा। सर यहाँ पे तो बस चेंजेस जाएगा सर, जो चेंज हुआ है पर्टिकुलर। समझ लो कि एक नेटवर्क था अभी नहीं है, वो भी एक चेंज है। एक नेटवर्क नहीं था अब चलाया, वो भी है। एक नेटवर्क था उसका थोड़ा बहुत चेंज हो गया।
तो वो भी एक चेंज है, वो चला जाएगा। ये सब मतलब चेंजेस राउटिंग टेबल में होता है ना सर? नहीं, ये डिपेंड होता है तुम्हारे पास क्या क्या इस्तेमाल होता है। जैसे कि IGRP में टोपोलॉजी का चेंज टोपोलॉजी टेबल से मिलता है, राउटिंग टेबल के उसका रूट रहता है, कुछ किसी भी रूट में अगर कोई चेंज आएगा, नेबर टेबल में कोई चेंज आएगा तो नेबर में कोई चेंज आएगा। एक राउटर है, उसका नेबर में कोई किसी भी चेंज होगा तो वो नेबर टेबल में उसका रिफ्लेक्शन आएगा। टोपोलॉजी में कोई चेंज होगा तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा। राउटिंग टेबल में रूट सिलेक्शन जहां से होता है, रूट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगा तो राउटिंग टेबल में होगा चेंज। जैसे कि सर रीप में क्या था, रीप में था एक ही टेबल, राउटिंग टेबल, लेकिन OSPF में तो बहुत सारे टेबल चलाया, मोर देन वन चलाया। IGRP में भी मोर देन वन। सर मेमोरी कंजप्शन किसमें ज्यादा होता है सर? हाँ हाँ, सर मेमोरी मेमोरी कंजप्शन। कंजप्शन देखो मेमोरी कंजम्पशन अगर तुम ये टेबल के हिसाब से देखोगे तो ऑब्वियसली यह इसमें OSPF या IGRP में ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारा रीप में एक ही टेबल इस्तेमाल होता था, ये तो तीनों टेबल यूज होगा, मेमोरी में रहेगा, पैरेलली चलेगा, तो यहाँ पर मेमोरी कंजम्पशन यूज तो ज्यादा होता है OSPF में भी, IGRP में। सर OSPF में मतलब कि एक राउटर के पास सारे राउटर का राउटिंग टेबल होता है। एग्जैक्टली। सर इसमें EIGRP में तो मतलब नहीं होता है? 10 या 20 जितना भी राउटर है, सबका राउटिंग टेबल सबके पास चला जाएगा, सबका राउटिंग टेबल सबके पास चला जाएगा। सर वही स्टोर है रहता है ना? लिंक स्टेट टेबल। जब सबके पास सेम नंबर ऑफ राउटिंग टेबल्स पहुंच गया, उसके बाद जो जनरेट होगा वो है लिंक स्टेट डेटाबेस, LSDB, फाइनल डेटाबेस। ये सबको पता चल गया भाई कि भाई किसके साथ किसका लिंक जुड़ा हुआ है, सबके सब क्लियर हो गया। दैट इज कॉल्ड द LSDB, लिंक स्टेट डेटाबेस। सर जो टेबल है वो स्टोर रहता है क्या? हाँ, वो तो टेबल तो स्टोर ही रहेगा मेमोरी में। ओके सर। हाँ, वो तो स्टोर ही रहेगा ना। अच्छा, EIGRP मेंटेन्स 3 डिफरेंट टेबल्स। मेनली क्या क्या, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल। नेबर टेबल में क्या होता है, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटर्स with which neighborship has been formed. Obviously, नेबर टेबल मतलब जिसके साथ नेबर रिलेशन क्रिएट हुआ। मैंने उस दिन भी बताया, आज भी बोल रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है, इसके मायने ये नहीं हुआ कि वो मेरा नेबर है। तो पहले नेबर बनो, उसके बाद तुम्हारा इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगा। मेरे साथ जुड़ा हुआ मतलब ये नहीं है मेरे, समझ जैसे कि तुम लोगों का होता है कि सबके क्लास में बैठे हो, सबके साथ सब बात कर रहे हो, लेकिन हम लोग अगर कहेंगे कि भाई मनीष तुम्हारा बुजुम फ्रेंड कौन होगा, तुम बोलोगे कि सर मेरा बुजुम फ्रेंड है एक्स। मतलब सब फ्रेंड है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा साइकोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तो वो तुम्हारा नजदीक होगा या वो तुम्हारा ज्यादा नजदीक होगा। सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। हर एक के साथ हर एक कनेक्टेड है, लेकिन कुछ फीचर्स है, अगर वो सब मिल जाए, उसके साथ सेम टू सेम हो जाएगा, तब जाके उसका नेबर बनेगा। जुड़ा हुआ रहता है, इसका मायने ये नहीं हुआ कि वो उसका नेबर है। सो दैट इज द नेबर टेबल। इसीलिए कह रहा है कि इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटर्स विथ व्हिच नेबरशिप हैज बीन फॉर्म्ड। मेरे साथ जुड़ा हुआ सब कुछ है, लेकिन जिसके साथ मेरा नेबरशिप फॉर्म हुआ कि हाँ भाई ये मेरा नेबर है, उसका लिस्टिंग राउटिंग नेबर टेबल में होगा। मेरे साथ जितना भी जुड़ा हुआ है, समझ लो मेरे साथ 10 जुड़ा हुआ नेटवर्क राउटर है, लेकिन नेबर है मेरा 3, तो ये नेबर टेबल में 3 का ही एंट्री रहेगा, बाकी सातों का नहीं रहेगा। दैट इज द पॉइंट। टोपोलॉजी का भी यही सेम है, इट कंटेन्स ऑल द रूट्स। टोपोलॉजी टेबल हर एक राउटर में रहता है, क्योंकि उसका जो टोपोलॉजी है वो उसके अंदर रहता है। अरे और एक राउटर उसका जो टोपोलॉजी है उसके अंदर रहता है।
क्या करता है, टोपोलॉजी जो टेबल है वो एक्सचेंज करता है कि भाई तुम्हारे पास जानकारी होना चाहिए मेरा टोपोलॉजी क्या है, तुम्हारे पास भी मेरे पास भी जानकारी होना चाहिए तुम्हारे पास टोपोलॉजी क्या है. सो प्लीज एक्सचेंज द टोपोलॉजी टेबल. So it contains all the routes available to a particular network. Means both feasible successor हम बाद में आएंगे, just to a network. Routing table, it contains all the routes जो मैंने अभी बताया, which are being used to make current routing decision. जितना भी रूट होगा, क्योंकि कौन सा रूट, उसी टाइप का रूट जिसके हिसाब से डिसीजन होगा कि मेरा यहाँ से वहां जाने का बेहतर रूट कौन सा है. আমি এখান থেকে ওখানে যাব, আমার কাছে অনেকগুলো রুট আছে, কোন রুটটা which is best suited for me সেইটার এন্ট্রি হচ্ছে রাউটিং টেবিলে থাকে. তবে রাউটিং টেবিল ওইগুলোকেই রেখে দিল যেটা আমার বেস্ট পাথ, আমি সেই পাথেই ডেটাটাকে সেন্ড করব. So these three are the routing tables. Is it clear? Is it clear or not? सर राउटर मतलब आपने बोला है कि एक साथ कनेक्टेड है तब पर भी नेबर नहीं होगा, लेकिन नेबर कैसे होगा फिर? वो उस दिन हमने बताया था ना, जो एसपीएफ जब हो रहा था कि कुछ कंडीशंस होगा जहां से उसको मिलेगा कि हाँ ये मेरा नेबर है. हमने उस दिन बताया था कि नेबर बनते नहीं, नेबर सिलेक्शन होता है. कब? मेरे साथ सबका जुड़ा हुआ रहता है, कुछ पैरामीटर्स होगा जिसके हिसाब से ये डिसीजन होगा कि ये नेबर है कि नहीं. जैसे कि टाइप ऑफ नेटवर्क कैसा होगा तुम्हारा, अगर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड एक्सचेंज होगा कि हाँ भाई मेरा पासवर्ड ये है. नेबर मतलब तुम्हारे साथ जो मिलजुल गया. मेरे साथ मेरे बहुत फ्रेंड है, लेकिन एक या दो या तीन के साथ मेरा इंटीमेसी ज्यादा है. तो इंटीमेसी कैसे बनता है, तुम्हारा जो लेवल ऑफ नॉलेज और तुम्हारा जो फ्रीक्वेंसी है, अगर तुम्हारा फ्रेंड का फ्रीक्वेंसी वही होगा, उसका चिंता, उसका जो भावना है, सब कुछ तुम्हारे साथ मिलेगा, तब जाके वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड होगा. फ्रेंड सभी फ्रेंड है, लेकिन अच्छा फ्रेंड अलग है. तो इसीलिए सबके साथ सब जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन नेबर होगा जब, नेबर होने के लिए कुछ पॉइंट चाहिए, जैसे कि टोपोलॉजिकल सिमिलरिटी, पासवर्ड एक्सचेंज होना चाहिए कि मेरे पास तुम्हारा पासवर्ड है, तुम्हारे पास मेरा एक पासवर्ड है. अगर ऐसा कुछ होगा तो तब जाके वो नेबर बनेगा, तब जाके वो नेबर बनेगा. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस. ओके सर. जो अभी बोला कि इंटरनल रूट्स, मैंने यहाँ पर बताया ना, एडी वैल्यू 90 है, ये डिफॉल्ट 90 है. रूट समरी होगा 5, एक्सटर्नल रूट होगा 170. एक्सटर्नल रूट मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रूट जो होता है वो है तुम्हारा EIGRP चल रहा है, उसके साथ एक IGRP नेटवर्क कनेक्टेड है. EIGRP एक नेटवर्क चल रहा है और एक जगह EIGRP नेटवर्क चल रहा है, दोनों के बीच एक राउटर के थ्रू से दोनों डिफरेंट नेटवर्क कनेक्टेड है. वहां पर ये एक्सटर्नल रूट होगा, उसका वैल्यू होगा, एडी वैल्यू होगा 170. ठीक है. EIGRP मैसेजेस, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस है, जैसे हमने बोला ये जो फुल अपडेट और पार्शियल अपडेट, नाल अपडेट है जहां पर कोई ये स्मूथ, ये जो बोलता है इट इज कैलकुलेट SRTT, स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, एंड RTO इज रिट्रांसमिशन टाइम आउट. ये दो टाइम होता है. नाल अपडेट मतलब कोई अपडेट नहीं है, नाल मतलब नेगेटिव नहीं. सो नाल अपडेट मीन्स कोई अपडेट नहीं है, इसको कहते हैं नाल अपडेट. फुल अपडेट क्या कहते हैं, तुम्हारे पास जितना जानकारी है पूरा টেবল लेके हमको भेज दिया, তোমার কাছে যা যা তুমি জানো, তোমার কাছে যা কম্প্যাক্ট ইনফরমেশন আছে তুমি পুরোটাই আমি পাঠিয়ে দিয়েছো, আমার কাছে যা ইনফরমেশন আছে এন্টার টেবিলটা আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি. সো দ্যাট ইজ ফুল আপডেট. কিন্তু যেহেতু আমি কি বললাম যে এ লিঙ্ক স্টেটের কিছুটা প্রপার্টি ক্যারি করে, তার মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিঙ্ক স্টেট তুমি সবসময় পুরো টেবিল এক্সচেঞ্জ করবে কেন, তোমার পুরো টেবিলে তো চেঞ্জ হচ্ছে না,
কোন একটা পার্টিকুলার জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে, তাহলে ওই চেঞ্জ, যে পার্টিকুলার চেঞ্জটা হচ্ছে সেই ইনফরমেশনটাকে আপডেট হিসেবে পাঠিয়ে দাও। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড পার্शियल अपडेट, नॉट फुल अपडेट। सपोज मेरे पास एबीसीडी है, तुम्हारे पास भी एबीसीडी है, मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास एबीसीडी ई हो गया, तो मैंने क्या किया, अगर री उसी के हिसाब से तुम देखोगे तो क्या होगा, पूरा एबीसीडी लिख के फिर से एक नया टेबल तुमको भेज दिया, तो कॉन्जेस्टेड हो जाएगा लाइन। लिंक स्टेट का कहना था कि नहीं, एक काम करो, ये जो चेंज हुआ ई, सिर्फ ई को सेंड कर दो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लिंक स्टेट। ये ई को भेज दिया, तुम जाके, तुम्हारे पास तो एबीसीडी है, तुम जाके वो ई को एंट्री कर दिया, दैट्स ऑल। तो इसीलिए इसको कहते हैं पार्शियल अपडेट, नॉट फुल अपडेट। फुल अप, मेरे पास तो अपडेट है, चेंज तो एबीसीडी है, तुम्हारे पास भी एबीसीडी है, मेरे पास भी एबीसीडी है, मेरा नया एंट्री है ई, तो क्यों हम, तुम्हारे पास जो है या मेरे पास जो है तो सेम है, तो एक्स्ट्रा क्यों भेजेंगे, सिर्फ जो चेंज हुआ उसको भेज दो, वो ई को हम भेज दिया, तुमने अपडेट कर दिया, तुम्हारे वहां पर ई ऐड कर दिया, दैट्स ऑल। अभी तो क्वेरी मैसेज, रिप्लाई मैसेज, एक्नॉलेजमेंट हम बोल दिया। यहाँ पर देखो, हेलो एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट्स डू नॉट रिक्वायर एनी एक्नॉलेजमेंट, रिप्लाई क्वेरी एंड अपडेट मैसेजेस आर रिलायबल मैसेजेस, रिक्वायर एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि हेलो पैकेट तो एक नॉर्मल पैकेट है, जो एक राउटर जब चलेगा, नेटवर्क चलेगा, चलने लगेगा, तो तब जाके सबको हेलो मैसेज भेज के बोल देना कि भाई कौन सा लिंक मेरे पास है, तुम्हारे पास क्या है, सब चलो एक्सचेंज करो। इसीलिए इसका तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होगा, और एक्नॉलेजमेंट का कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, बाकी ये तीनों का एक्नॉलेजमेंट होता है। এটাই হচ্ছে এখানে বলেছে, আর কিচ্ছু না। ইজ ইট ক্লিয়ার? এটা কি বোঝা গেছে? বলো আমাকে। यस सर। আচ্ছা, বাকিরা, রেস্ট অফ ইউর ফ্রেন্ডস বোঝা গেছে, ভালো। यस सर, এইবার আমি বলছি, যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম, সেটা হচ্ছে যে যখন একটা ইআইজিআরপি রাউটার কাজ করে, বেসিক্যালি তিনটে কাজ করে, 3 functions it executes. First is neighbor discovery. If you are asked what are the functions of EIGRP, general functions, so first function of EIGRP is to discover neighbor means neighbor discovery, matlab first it starts discovering who are my neighbors, that is the network discovery, neighbor discovery। क्या कैसे होता है, जो अभी तुमने मेरे को पूछा कि सर ये नेबर कैसे पता चलेगा, अब तो बोल रहा है सभी कनेक्टेड है, लेकिन नेबर कौन है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट नेबर डिस्कवरी के लिए पहले राउटर चेक करता है कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, तुम वहां पर जो सीरियल लिंक में कनेक्टेड है, सीरियल लिंक में পাসওয়ার্ড দেখে उसको সিকিউর कर सकते हो, তোমরা ওখানে সিরিয়াল লিংকে পাসওয়ার্ড দিতে পারো। ওই যে আমি আগের দিন দেখাচ্ছিলাম যে সিরিয়াল পোর্ট গুলো আছে কানেক্টেড, তুমি সিরিয়াল পোর্টে গিয়ে যেখানে ঢুকছে মেন কানেকশনটা, তুমি সেখানে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করে দিতে পারো। তুমি কাকে বিশ্বাস করবে, টু হুম ইউ ক্যান রিলাই অর मींस यू कैन डिपेंड, किसके ऊपर बताओ। अगर मेरे को लगा कि यही मेरा सही नेबर है, तो उसके पास मेरे सीरियल पोर्ट में एंट्री होने का जो पासवर्ड उसके पास होना चाहिए, अगर है मतलब वो मेरा नेबर है, वो मेरा ट्रस्टवर्दी एक फ्रेंड है, इट इज वेरी मच ट्रस्टवर्दी, मतलब ये मेरा नजदीक का फ्रेंड है, तो चलो इसके पास पासवर्ड है, ये मेरे साथ कनेक्टेड हो गया। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर the point is the router must process the authentication, pass the authentication process,
कि मेरे पास तुम एक राउटर हो, मैं एक राउटर हूँ, तो मेरा नेबर तुम तब होगा जब तुम्हारे अंदर जाने के लिए जो सीरियल पोर्ट है उसका पासवर्ड मेरे पास होगा, तब जाके मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। देन द फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइज द सेकेंड। क्या होगा? सिमिलरली तुम जो राउटर हो, मैं जो राउटर हूँ, तुम्हारा एज वैल्यू क्या है? मेरा एज वैल्यू 100 है। ओ, मेरा तो भी एज वैल्यू भी 100 है। मतलब एज वैल्यू सेम होना चाहिए नेबर के लिए। थर्ड क्या है? थर्ड होता है तुम्हारा जो नेटवर्क चल रहा है वो जिस क्लास का होना चाहिए और उसमें जिस टाइप का सब सबनेट मास्क डाल दिया गया, सेम थिंग शुड बी विथ मी, then only we become neighbor. So 3 points remember to become neighbor in case of EIGRP router. First, authentication process. Second, same age value. थर्ड, सेम नेटवर्क होना चाहिए। तब जाके एक राउटर के साथ अगर ये कॉमन हो जाएगा तो एक राउटर के साथ नेबरशिप क्रिएट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सर ये हम लोग डिसाइड करते हैं या राउटर डिसाइड करते हैं? राउटर तुमने कॉन्फ़िगर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन के बाद राउटर ऑटोमेटिकली EIGRP भी कॉन्फ़िगर कर दिया, तब जाके उसको डिसीजन वो डिसाइड कर लेते हैं। ये पैरामीटर्स के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करके वो डिसाइड कर लेता है कौन मेरा नेबर है, कौन नहीं है। सिर्फ पासवर्ड एक्सचेंज से क्या है सर, ये मतलब? पासवर्ड एक्सचेंज कुछ नहीं, तुम्हारा सीरियल पोर्ट में जाके तुम एक पासवर्ड डाल दिया, तो तब उसमें जाके सेम पासवर्ड देके उसके अंदर चले आने के लिए तो उसको अगर पासवर्ड दोगे तो उसमें उस इंटरफेस में तुम घुस सकोगे। तो तुम एक पासवर्ड को देकर उसके इंटरफेस में घुस रहे हो, मतलब क्या? मतलब मेरा जो सिक्योरिटी कोड है वो मेरे एक जिसके पास है वो मेरा दोस्त है, so automatically you should have the password of my entry point. So that is the authentication process. That is the authentication process. Both routers must pass this authentication process. This is the first criteria. The second one is they should have under same age value, and third one is they should have the same type of network, means they should have a belongings to the same type of network. तुम जो नेटवर्क में हो, मैं भी जो नेटवर्क में हूँ, सेम नेटवर्क में। सपोज हम है 192.168.10.0.0/27, तुम्हारा नेटवर्क हो गया 192.168.20.0/0/28, तब जाके ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। ये /28 तुम्हारे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। पहला ही पॉइंट ये सेम है, जो टाइप का नेटवर्क हम दे रहा है सेम टाइप का नेटवर्क तुम्हारे पास होना चाहिए। मतलब 192.128 समझ लो, 192.168.10.0/27 तुम्हारे पास भी है 192.168.20.0/27, तब जाके नेबर हम बन सकेंगे। लेकिन तुम्हारे पास 192.168.20.0/28 हो जाएगा या 26 हो जाएगा, तब ये नहीं बन सकेगा। सर एक राउटर का कितना नेबर हो सकता है? जितना उसके साथ कम्युनिकेशन होगा, जितना जुड़ेगा। सब नेबर नहीं हो सकता है, ये 3 पॉइंट फॉलो करना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट फॉलो करने के बाद ही बोल सकेंगे कि कितना हो सकेगा। समझ लो मैं एक राउटर हूँ, मेरे साथ 10 राउटर का कम्युनिकेशन है, इसका मतलब नहीं है कि 10 मेरा नेबर है। हो सकता है एक नेबर है, हो सकता है 10 नेबर है, हो सकता है 5, हो सकता है 8। ये डिपेंड होता है ये तीनों पैरामीटर, ये तीनों मीटर पैरामीटर मैच करने के बाद जितना राउटर के साथ नेबरशिप होगा उतना ही। सर हम चेक कर सकते हैं सर कौन किसका नेबर है? हाँ, तुम तो देख सकते हो। सो और वो था ना, सो वो SPF नेबर देखकर तो तुमको पता चलेगा। वो जो कमेंट है, कमेंट देने से ही तुमको पता चलेगा कि भाई
नेबर टेबल के का जो इंफॉर्मेशन ये सब दिखा रहा है, कौन सा मेरा नेबर है, कौन सा नहीं है। समझ में आया? यस सर। सर EIGRP पे, EIGRP पे मतलब सर इस पे भी चेक कर सकते हैं क्या नेबर? हाँ सेम सेम, हम आएंगे कल, आएंगे हम कल, दिखाएंगे हम कल दिखाएंगे, कल तो लैब करेंगे हम EIGRP का, ठीक है। सो बेसिकली एक राउटर माने EIGRP राउटर के साथ जब कम्युनिकेशन होता है तो तीन स्टेप्स होता है जनरली। पहला ये था नेटवर्क डिस्कवरी, दूसरा है टोपोलॉजी एक्सचेंज। टोपोलॉजी एक्सचेंज के मतलब क्या होता है, तुम्हारे मेरे पास जो टोपोलॉजी है, मेरे साथ जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है, हम तुमको भेज रहा है, तुम्हारे पास जो है तुम मुझको भेज दो, তোমার কাছে যা যা তোমার কমিউনিকেশনের মতো তোমার সঙ্গে লিংক যারা আছে তাদের নিয়ে তোমার টপোলজি ডেটাবেসটা আমারও তাই, আমি আমার টপোলজি ডেটাবেসটা তোমায় দিলাম, তোমার টপোলজি ডেটাবেসটা আমায় দাও, তাহলে আমরা পরস্পর এক্সচেঞ্জ করে দেখে নেবো, কমন এন্ট্রি গুলো রাখবো, যেগুলো অ্যাডিশনাল সেগুলোকে আমরা ওখানে দিয়ে দেবো, কিছু কমন থাকবে ইনফরমেশন। তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড, ফার্স্ট হচ্ছে নেবার ডিসকভারি, সেকেন্ড হচ্ছে সেটা হচ্ছে টপোলজি এক্সচেঞ্জ। लास्ट जेटा द लास्ट वन इज द रूट सिलेक्शन, कौन सा रूट हमको इस्तेमाल करना चाहिए। सब कुछ हम मेरा बन गया, सब ठीक है। नाउ रूट सिलेक्शन जो मैंने अभी बताया, तो मैट्रिक कैलकुलेशन है, वो तो बहुत सारी चीजें है, वो तो हम नेक्स्ट दिन देखेंगे। तो यही हुआ फंडा बेसिक्स ऑफ द IGRP। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। सर नेबर डिस्कवरी के लिए 3 पॉइंट बोला ना सर, सेम सबनेट, एएस वैल्यू और सेम, सो और एक क्या बोला? ओ वो हेलो मैसेज भेजना सेम सब नेटवर्क में होना चाहिए, सेम नेटवर्क होना चाहिए। सर नहीं, 3 पॉइंट बोला था आपने। 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट को पहले तो तुम बोल दिया, ऑथेंटिकेशन पास होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए हচ্ছে सेम एज वैल्यू, और 3 होना चाहिए वो जो लास्ट में हम बोला कि सेम सब नेटवर्क होना चाहिए, तो सेम फर्स्ट नेटवर्क। वाला क्या बोला? फर्स्ट लिख लो, यस सर। हम बोल रहे हैं तुम लिख लो। हेडलाइन दो, नेबर डिस्कवरी, नेबर डिस्कवरी। लिखो पहला एक लाइन लिखो, द राउटर चेक्स the following settings to determine if the router should be allowed to be a neighbor डैश देना, उसके बाद 3 डॉट्स, फर्स्ट डॉट में एक पॉइंट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट। फर्स्ट डॉट में लिखो the routers means plural, the routers must pass the authentication process. The routers must pass the authentication process. Full stop. Second dot में लिखो the routers must use the same configured AS, full stop. थर्ड जो पॉइंट है उसमें लिखो the source IP address, comma, used by the neighbor hello
hello means inverted, within inverted, hello, 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 comma, must be in the same subnet, must be in the same subnet, full stop. ये तीनों पॉइंट है. लिख लिया? कंप्लीट लिख लिया क्या? কি হলো রে, এরা কি সারাও দেয় না? মনীষ লগ আউট করে গেছে নাকি? মনীষ জয়েন করছে? So last point used হ্যাঁ, by hello. must be in the same subnet, must be in the same subnet. Must be in the same subnet. That's all.